آپ خداوند کے لوگوں کے لیے مجھ رکھتی ہیں. آپ کی دعا کے ساتھ ہم آمین کہتے ہیں. میں اب دعوت دیتا ہوں پاسٹر لطیف جان کو کہ خداوند کے سورما خداوند کے خادم کو ویلکم. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں خداوند کے جس نے ہم سب کو زندگی صحت اور تندرستی عطا کی ہے، اور تمام پرستاروں کے لیے، تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے، خداوند کے خادموں کے لیے شکر گزار ہیں جو آج کی اس عبادت میں آئے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب آج کی اس عبادت سے برکت کو حاصل کریں گے. میری خاص دعوت پر آج پاسٹر جسٹن بھٹی کو، جن کا تعلق اٹلی سے ہے، وہ آج خداوند کے زندہ پاک کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے فوراً اس دعوت کو قبول کیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند کے خادم جو ہیں وہ ہر وقت خدا کے کلام کو منادی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. گو کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر انسان کافی بیزی ہوتا ہے، اور اپنی بیزی لائف میں سے چند لمحات، چند گھنٹے خداوند کے حضور میں صرف کرنا گو کہ مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بہت ہی فروٹفل ہے، بابرکت ہے کہ جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سناتے ہیں. اور جیسے پائی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کانگریگیشن کیسی ہے، تو میں نے کہا جی کانگریگیشن پاکستانی ہے سارے، اور سارے یورپین ہیں، یعنی کہ یورپ میں رہتے ہیں. انڈیا سے بھی ہمارے ساتھ ہیں، بھائی صورت ہمارے ساتھ انڈیا سے ہیں، ابھی بھائی سنجیت نے انڈیا سے ہے جو ستار بجا گیت گایا. سو آل اوور دا ورلڈ یہ ایک وائس آف گاڈ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ انٹرنیشنل ہے، اور سب اس میں خدا ان کے کلام سے برکت حاصل کرتے ہیں. اور آج میں وائس آف گاڈ کی طرف سے پاسٹر جسٹن کو ویلکم کہتا ہوں. ویلکم پاسٹر جی، خداوند آپ کو اس پلیٹ فارم پر کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے خرچ اور استعمال کرے. تھوڑا سا پرابلم آج انٹرنیٹ کا ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم ضرور اس آواز کو بخوبی طور پر سن سکیں گے. سو ویلکم پائی صاحب، گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو. آمین. آمین. آپ سب لوگ مجھے اچھی طرح سن سکتے ہیں؟ جی پاسٹر جی، میری آواز بالکل سب لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی آواز برادر جی آپ ٹھیک آ رہی ہے آواز. آمین. ہاللویا. ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا خدا ہر قسم کی ٹیکنالوجی کو، ہر قسم کے سسٹم کو اور ہر طرح کے وسائل کو اپنے لوگوں کے لیے کارآمد بنا دیتا ہے اور ان کو بروئے کار لاتا ہے تاکہ ہم اس کے جلال کے لیے خرچ ہو سکیں، اس کے کام کے لیے ہم صرف ہو سکیں، اس کے کام کے لیے ہم استعمال کیے جا سکیں. سو میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس خوبصورت پلیٹ فارم کا، وائس آف گاڈ. وائس آف گاڈ ایک ایسا عظیم چند لفظوں کا مجموعہ ہے. جب اس کو سنتے ہیں تو حقیقت میں جب ہم اس کی سچائی کے اندر اتر جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی خوشی اور شادمانی سے بھر جاتی ہے. جب خدا کا بندہ، خدا کا بیٹا، مرد خدا بزرگ موسیٰ کوہ سینا پر گئے تو وہاں پر he listened the voice of God for the Israelites. So اس نے اسرائیل کے لیے خدا کی آواز کو کوہ سینا پر سنا، اور پھر آ کر کوہ سینا سے نیچے آ کر اس نے اس آواز کو بنی اسرائیل قوم تک پہنچایا. اسی طرح جتنے بھی انبیاء، خدا کا خادم ایلیا، خدا کا بندہ داؤد، اور جتنے بھی خدا کے ممسو اور خدا کے لوگ روئے زمین پر آئے، they delivered the voice of God to the mankind. انہوں نے خدا کی آواز کو بنی آدم کے لیے ڈیلیور کیا، دیا، تاکہ بنی آدم
उस आवाज से, उस कलाम से बरकत पाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं। और वॉइस ऑफ गॉड के हवाले ही से आज मैंने खुदा से मांगा है और खुदा ने हमारे लिए किया है कि हम खुदा के कलाम में से सीखने वाले होंगे। देखेंगे पुराने अहदनामा में से हिजकील नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 3 आयत मुकद्दसा मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हिजकील नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 3 आयत मुकद्दसा, और फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह का मुकाशफा 10 बाब और उसकी चंद आयत हम कलाम अक़दस में से तलावत करने वाले होंगे। सो पहले हम तलावत करेंगे हिजकील नबी का सहीफा 3रा बाब और उसकी पहली 3 आयत मुकद्दसा। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, फिर उसने मुझसे कहा, ए आदम साद, जो कुछ तूने पाया सो खा, उस तुमार को निकल जा और जाकर इसराइल के खानदान से कलाम कर। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा, ए आदम साद, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूं खा जा और इससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानद मीठा था। कलाम खुदा की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इसके साथ ही देखेंगे मुकाशफा 10 बाब और उसकी 8वीं आयत से कलाम अक़दस की तलावत शुरू करेंगे। यूं लिखा है, और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर से बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ता के हाथ में से जो समंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। फिर मैंने वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझसे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। समरे सो अहदे अतीक हो या अहदे जदीद, दुनिया की तख्लीक का जो निजाम है उसकी बुनियाद ही वॉइस ऑफ गॉड है, खुदा की आवाज है। खुदा की आवाज के बगैर कायनात की कोई भी चीज जो है वो कायम नहीं रह सकती, बल्कि कायनात का वजूद ही खुदा की आवाज से हुआ, खुदा के कलाम से हुआ। इंसान की इब्तदा जो है वो भी खुदा के कलाम से हुई। और जब इंसानी वजूद का कायम होना खुदा की आवाज से है,
تو انسانی وجود کا قائم رہنا بھی کلام خدا کے بغیر ناممکن ہے۔ خدا کے کلام کے بغیر یہ دنیا اور یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ جس کا خلق کیا جانا ذات اقدس کے منہ سے نکلی ہوئی آواز کے ساتھ ہو، وہ اس آواز کے بغیر کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جب ہم چھوٹی کتاب کی بات کرتے ہیں تو جب میں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں، جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، تو یہ چھوٹی کتاب کلام اقدس ہے، بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، جو کوہ سینا پر خدا کے خادم پر نازل ہوا، جو یروشلم اور سامریہ کی راہوں میں میرے اور آپ کے مسیحا نے جو خود آسمان کو چھوڑ کر ہمارے درمیان آیا، وہاں پر ان کے مبارک لبوں سے صادر ہوا، اور وہ کلام اس کتاب کے اندر قلم بند کیا گیا۔ یہ کلام وہ کلام ہے جو رسولوں کو، شاگردوں کو روح القدس ملنے کے بعد، روح القدس کی وساطت سے، روح القدس کے مسا سے، روح القدس کی نائٹنگ سے ان کے اندر سے ثابت ہوتا تھا، اور وہ کلام جب ان کے اندر سے ثابت ہوتا تھا، ان کے لبوں سے نکلتا تھا، تو وہ لوگوں کے لیے شفا اور سلامتی اور بحالی کا سبب بنتا تھا۔ یہ وہی کلام ہے۔ جب اس کلام کو ختم کرنے کے لیے رومی حکومت منصوبہ بناتی ہے اور وہ یوحنا عارف کو پتمس کے جزیرے کے اندر بند کر دیتی ہے، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ خوراک ہے، اور وہاں پر زندگی کے قائم رکھنے کے لیے کوئی صورت ہی موجود نہیں، وہاں پر انسانی عقل کے مطابق زندگی کے قیام کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے اس آواز کو جو یوحنا عارف کے اندر سے خدا کے جلال کے لیے نکلتی تھی، اس آواز کو ختم کرنے کے لیے اسے پتمس کے جزیرے کے اندر قائم کر دیا، تو وہ آواز اور زیادہ مضبوط ہو کر آنے والے ہزاروں سالوں پر محیط ہو کر آنے والی نسلوں کے لیے خدا کے جلال کا سبب بن گئی۔ ہاللویا۔ میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ جی پاسٹر جی، آپ کی بالکل آواز صحیح آ رھی ہے، پلیز کنٹینیو۔ آمین۔ سو وہ آواز جسے دبانے کے لیے اسے پتمس کے جزیرے میں پھینک دیا گیا، اور وہاں پر لوگوں نے سوچا، حکمرانوں نے سوچا، فقیہوں، فریسیوں، علماء نے سوچا کہ اب یہ ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ آواز مکاشفہ کی صورت میں، بھید کی صورت میں خدا کے آسمان سے نازل ہو کر اس کی زندگی کے اندر سماتی ہے، اور پھر وہ آنے والے زمانوں کے لیے ان کی نجات اور سلامتی اور آنے والے زمانوں کی جو ساری باتیں اور بھید ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کر دیتی ہے۔ یہی خدا کا جلال ہے، یہی خدا کی آواز ہے، یہی وائس آف گاڈ ہے۔ وائس آف گاڈ کے بغیر کوئی بھی زمانہ، خواہ وہ قبل از مسیح کا زمانہ ہو یا بعد از مسیح کا زمانہ ہو، کوئی بھی زمانہ وائس آف گاڈ کے بغیر اس کا قیام ناممکن ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر کلام اقدس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کا کلام اس کے نبی کے زمانہ میں نازل ہوتا ہے، اور فرشتہ، خدا کا خادم، خدا کا بندہ نبی سے کہتا ہے، فرشتہ نبی کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، لے اس تمہار کو کھا لے۔ تمہار کا مطلب بھی کتاب ہے، تمہار کا مطلب بھی خدا کا کلام ہے، کیونکہ اس زمانہ میں لوگوں کے پاس کاغذ نہیں تھا،
किताब नहीं थी, ये चीज नहीं थी, तो उस जमाना में चमड़े की तोमारों के ऊपर खुदा का कलाम लिखा गया था। और रिश्ता खुदा के खादम से नबी से कहता है, इस कलाम को खा ले, इस कलाम को अपने अंदर ले ले, इस कलाम से अपने पेट को भर ले। जब मैं इस पर गौर करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि खुदा के फरिश्ता ने उसके सामने कलाम अक़दस को रख दिया है, उसके सामने खुदा के कलाम को रख दिया है, बाइबल मुकद्दस को। उससे पहले जितना कलाम नाज़िल हुआ था उस सारे को उसके सामने रखा है और उससे कहा है, इस किताब को ले, इस कलाम को ले, इसको पढ़, इसको खा ले। खाने से मुराद इसको पढ़ना है, इसे अपनी जिंदगी में लेना है, इसे अपनी जिंदगी में जमा करना है, इसे अपनी जिंदगी के अंदर ज़ख़ीरा करना है। आज भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बेशक रोशनी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आज भी लोगों के पास खुदा का कलाम नहीं। तो आने वाले वक्त में खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि वक्त आएगा जब मैं इस जमीन पर कहत भेजूंगा। क्या भेजूंगा? कहत भेजूंगा। उस वक्त रोटी का कहत नहीं होगा, पानी का कहत नहीं होगा, अशियाए खुर्दोनोश का कहत नहीं होगा, किसी खाने पीने की चीज का कहत नहीं होगा। ये सब चीजें इंसान को वाफिर मिकदार में मिलेंगी। कहत होगा तो खुदा के कलाम का कहत होगा, कहत होगा तो कलाम अक़दस का कहत होगा, कहत होगा तो खुदा के आसमान से मुंह से निकली हुई बातों का कहत होगा। उस वक्त लोग मशरक से मगरब तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक खुदा के कलाम को ढूंढते फिरेंगे। कोई कलाम होगा नहीं, कोई कलाम सुनाने वाला नहीं होगा, कोई कलाम देने वाला नहीं होगा। ये खुदा के कलाम के अंदर बयान की गई बात है। वक्त आने वाला है जब हमारे पास कलाम अक़दस मौजूद, इसलिए उस वक्त से आने से पहले खुदा का कलाम हमें आगाह करता है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये आयतें जो हैं ये खुदा के खादम मुकद्दस हिजकिय्याल नबी के लिए नहीं है, बल्कि ये आयतें, ये कलाम अक़दस के ये अल्फाज मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा हुआ है, और खुदा का कलाम आज कल बल्कि अबद तक यकसां है। ये कल हिजकिय्याल के लिए था, आज मेरे लिए और आपके लिए है, और आने वाले कल में हमारी आने वाली नस्लों के लिए होगा। आज खुदा का कलाम हमें ये कहता है, इस किताब को ले और इसे खा। ये कलाम आज तेरे पास है, आज तेरी अलमारी में है, आज तेरे घर के अंदर पड़ा हुआ है। आज तुझे इस कलाम को लेने की जरूरत है, तुझे इस कलाम को सीखने की जरूरत है। आज जब ये कलाम हर जगह पर आपको मिल रहा है, आपके घर में भी पड़ा हुआ है, आप चर्च में जाते हैं वहां पर ये कलाम मिलता है, आप इंटरनेट पे जाते हैं वहां पर आपको कलाम मिलता है, और बहुत सारे खुदा के खादम जो हैं ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, इबादत और वर्शिप करते हैं, वहां पर आपको ये खुदा का कलाम मिलता है। जहां से भी ये खुदा का कलाम आज आपको मिलता है, फरिश्ता ने उससे कहा, ले, इस तुमार को ले और इसे खा और इससे अपना पेट भर ले। यानी अच्छी तरह से रूहानी तौर पर आसूदा हो जा। जब मर्द खुदा, खुदा का खादम हज़रत मूसा कोहे सीना पर जाता है, तो वहां पर खुदा उसके साथ खुद कलाम करता है, और बड़ा वक्त वहां पर गुजारा गया है। अगर हम सही तरह पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और मूसा
6 दिन तक पहाड़ पर ठहरा रहा और 7वें दिन खुदा ने घटा में से अपने बंदा मूसा को ऊपर पहाड़ पर बुलाया। 7वें दिन, 6 दिन उसको पाक किया गया, 7वें दिन उसको पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया गया और वहां पर 40 दिन और 40 रात। ये कुछ छोटा अरसा नहीं, ये थोड़ा सा वक्त नहीं, वहां पर खुदा के कलाम से उसको भरा गया है, वहां पर उसको खुदा का कलाम दिया गया है। खुदा खुद उससे बात करता रहा है, उसकी जिंदगी के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके ज़हन के अंदर खुदा अपने कलाम को उतारता रहा है। उसने उस कलाम को जो खुदा के मुंह से निकलता था उसको खाया, उसे अपनी जिंदगी में लिया और फिर आकर वो बनी इस्राएल कौम के दरमियान उसको पेश करने वाला हुआ, बताने वाला हुआ कि खुदा आपकी जिंदगी से ये चाहता है। यहाँ पर भी हिजकिय्याह के साथ यही कलाम किया गया है, ले इस तूमार को निकल जा। हाँ, निकल जा। निकल जाने का मतलब है कि अब तेरे पास वक्त थोड़ा है, जल्दी इसको खा ले, क्योंकि अभी तुझे निकल कर बनी इस्राएल कौम के पास जाना है, परागंदा भेड़ों के पास जाना है, जो भटक चुके हैं, जो भूले हुए हैं, जो राह को छोड़ चुके हैं, तुझे उनके पास जाना है। ये कलाम ही तेरी जिंदगी के लिए भी भलाई है और तेरी कौम के लिए भी भलाई है। और अगर हम यूहन्ना 8 के मुकाशवा के अंदर जो खुदा का कलाम हमें बयान फरमाता है उसको गौर से देखें तो वहां पर भी यही बात है। और फरिश्ता ने मुझसे कहा, इस छोटी किताब को ले और इसे खा जा। छोटी किताब, मैंने बात शुरू की थी, छोटी किताब ये खुदा का कलाम है, ये बाइबल मुकद्दस है जो पूरी दुनिया के अंदर खुदा की आवाज को पहुंचा रही है। यही खुदा की आवाज है, यही खुदा की बात है जिसे हमें दुनिया तक पहुंचाना है। और खुदा अपने कलाम में अपने लोगों को इनकश करता है, अपने लोगों को तरबियत देता है, सिखाता है, इस किताब को ले, इसे खा ले, इसे खा ले। ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। और अगली बातें, बस मैं छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया, वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना शुरू हुआ है। बड़ा मुश्किल टास्क दिया गया है, बड़ा मुश्किल काम दिया गया है। इस किताब को ले और खा ले, यानी इसे अपनी जिंदगी के अंदर रख ले, इस इल्म को हासिल कर ले, खुदा के मुंह की बातों को सीख, खुदा के मुंह की बातों को याद कर। इसलिए कि तुझे इस कलाम को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी अपनी जिंदगी के अंदर रखना जरूरी है। ये कलाम सिर्फ तेरी जिंदगी के लिए नहीं, ये कलाम सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, ये कलाम सिर्फ खातमों के लिए नहीं, ये कलाम सिर्फ खुदा के लोगों के लिए नहीं है, बेशक ये ईमानदारों की तरबियत के लिए है। अगर हम अमाल की किताब में देखें तो अमाल की किताब में कलाम इक़दस में खुदा के कलाम में अमाल 2 बाब देखें तो उसमें लिखा हुआ है, और जब लोगों ने खुदावंद को कबूल किया, लोग खुदा की कलीसिया में शामिल हुए, अमाल 2 बाब, तो वहां पर लिखा है, और वो रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और रफाकत रखने में मशगूल रहे। तालीम पाना, यही वो बात है खुदा की कलाम मुकद्दस में। इस किताब को ले, ये नहीं तालीम पाना है, सीखना है, हासिल करना है इस कलाम को, खुदा की जिंदगी, खुदा से जिंदगी पाने के लिए, लोगों के लिए इस कलाम की मुनादी करनी है। आज बेशक दुनिया के अंदर बहुत सारी कलीसियाएं हैं,
ऑनलाइन बहुत सारी खिदमत हो रही है, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन आज भी लोग खुदा के कलाम की हकीकी रूह से ना वाकिफ। अभी कल ही एक कराची में वाक़ा हुआ और एक खादम और खादमा दोनों मियाँ बीवी थे और वो दावा करते हैं कि हम खुदा की कलाम की मुनादी करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही एक बहुत बड़ा सानहा किया, चर्च के अंदर आग लगाई और अपने मुखालफों पर, वो भी मसीही थे, उन पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिसका बाद में पता भी चल गया कि वो सारा कुछ गलत था। ये है खुदा के कलाम से नावाकिफ होना। बेशक वो दावा करते हैं कि हम खुदा के कलाम से वाकिफ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं किया। वो कहते हैं इस कलाम को खा ले, इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर याद रख। अगर हम कलाम अक़दस में पुराने अहदनामा में चले जाएं, यशुआ की किताब, यशुआ उसका पहला बाब, बड़ी कामयाबी के लिए खूबसूरत आयतें हैं और वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि तुम किस तरह से कामयाबी पा सकते हो। कलाम अक़दस में पुराने अहदनामा में यशुआ उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं कलाम खुदा को आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम खुदा में जो लिखा हुआ है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू वक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कि उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। मेरे असीसों, यहाँ पर बड़े बड़े गहरे अल्फाज लिखे हुए हैं और अल्फाज हैं उस सब पर तू एहतियात करके अमल करे। एहतियात कर यानी खास तौर से यहाँ पर बयान किया गया है, खुसूसी बात की गई है, बड़ा ध्यान देना है। और हमने यूहन्ना आरफ के वसीला से कलाम अक़दस में से देखा है, सीखा है कि ये किताब खाली, और यहाँ पर खुदा का खादम, खुदा का बंदा इस बात को बयान फरमा रहा है और तू इसको अपने सामने रख, आपकी निगाह के सामने रख और तू इससे इधर या उधर हटने ना पाए, बल्कि तू एहतियात करके इसकी सब बातों पर अमल करे। तुझे सिर्फ इसको हासिल नहीं करना, तुझे सिर्फ इसको लेना नहीं, बल्कि एहतियात से इसकी बातों पर अमल भी करना है। कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करना है, कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर पूरी तौर से अपनी जिंदगी के अंदर अमली जामा पहनाना है। और फिर इसके बाद दूसरा काम शुरू होता है। पहला काम कि हमने इस किताब को लेना है, इस कलाम को लेना है, इसे खाना है।
इसे याद करना है, इस इल्म को हासिल कर लेना है, इस इल्म को अपनी जिंदगी के अंदर ज़ख़ीरा करना है। और जब हम इस कलाम को, इस इल्म को अपनी जिंदगी के अंदर ज़ख़ीरा करने के बाद इस पर एहतियात से अमल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर अगली बात शुरू हो जाती है, और तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों के सामने गवाही देना ज़रूर है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने हमें तैयार किया है। बेशक दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की मर्जी को लोगों तक लेकर जाने वाले हों। आज खुदा हमसे यही चाहता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात भी कह दूं कि यहाँ पर दो इसकी खासियत जो है वो जाहिर की गई है। दो तरह का इसका टेस्ट बयान किया गया है। ये तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। यानी जब हम इसे खाते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसकी तलावत करते हैं, तो हमारा दिल खुशी से, शादमानी से भर जाता है, और तुझे खूब कामयाबी की राह नसीब होगी। तू कामयाब होगा, तू किसी जगह पर नाकाम नहीं होगा। आसमान की सारी बरकतें तेरे लिए होंगे, तेरे लिए आसमान खुल जाएगा, तेरी जिंदगी से मोजज़ात होंगे। जहां तू जाएगा खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल तेरे लिए होगा। जब इन बातों को पढ़ते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन जब वो कहता है तुझे कौमों और उम्मतों और कबीलों और दूसरे लोगों के सामने जाकर मुनाजी करनी है, खिदमत करनी है, खुदा के कलाम को बयान करना है, वहां पर जो मुश्किलात हैं, वहां पर जो दुख उठाने हैं, जहां पर तकलीफें उठानी हैं, जहां पर मुसीबतें उठानी हैं, जब उनका जिक्र आता है तो फिर हमारा पेट कड़वा हो जाता है। यानी हमारी जिंदगी मुश्किल के अंदर चली जाती है। हम सोचते हैं ये काम मुश्किल है। मोजज़े हासिल करना ठीक है, बरकतें हासिल करना ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हमें बरकतों को लेने के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है, जो इस कलाम की सबब से हमें मिलती हैं। और इस कलाम के अंदर जो मुश्किलें और मुसीबतें आने वाली हैं, उनके लिए भी हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा के जलाल के लिए, खुदा के कलाम के लिए दुआ करने वाले हम। खुदावंद, खुदा यसीम, खुदा पाक, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हम सबों के लिए है, और तूने आज अपने कलाम से हमें आसूदा किया है। तू चाहता है कि हम इस किताब को, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लें और खाएं, इसे हजम करें और फिर इसे डिलीवर करें, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो पूरी दुनिया से। जहां जहां से हमारे लोग हमारे साथ हैं, खुदावंद, सबों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और तेरा ये कलाम हर एक जिंदगी के लिए खुदा बाइस से बरकत हो, और लोग बरकत पाकर तुझे जलाल दे सकें। तेरे जलाली बरकत और पवित्र नाम यीशु मसीह नासरी के सबब से मांगते हैं, आमीन।